Hello children, welcome to this next video. In this particular video we will talk about the mole concept used in solutions. There are some particular concentration terms what we use in a calculation of concentrations in any solution. So let us continue with details. What is a solution at first? Let us repeat. A solution is defined as a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances. A solution is generally a homogeneous mixture of two or more than two substances which are chemically non-reactive to each other. A solution containing only two components is called a binary solution. In this particular topic, we will generally consider the binary solutions. A solution is composed of two parts, a solute and a solvent. Solute is generally present in smaller amount and the solvent is generally present in larger amount. So a solution composed of a solute and solvent. Okay, let us move further. The methods of expressing concentration in solution. The first one is mass percentage or percent by mass. It is defined as the amount of solute in grams present in 100 grams of solution. If you want to calculate, the formula will be mass percent of solute equals to mass of solute into 100 divided by mass of solution. Mass of solution means mass of solute plus mass of solvent. So here in denominator we have to place mass of solution. So mass of solution is mass of solute plus mass of solvent. If we use only this ratio, mass of solute upon mass of solution, it is known as mass fraction. Okay. Next relationship is percent volume. It is defined as the volume of solute in milliliter present in 100 milliliter of solution. If our solute and solvent both are liquids or both are gases, then we can go by this particular relationship, percent by volume. Percent by volume equals to volume of solute into 100 divided by volume of solution. Percent mass by volume. It is defined as the amount of solute present in 100 ml of solution. Say if the solute is solute and the solution is in liquid phase, then we can use percent mass by volume. Percent mass by volume is equals to mass of solute into 100 divided by volume of solution. Mass of solute into 100 divided by total volume of solution. Okay. Now, a very important term, strength or concentration. It is a very general term. We generally use it like to explain any concentration of any solution. We use it in just like gram per liter or gram per milliliter. A particular solute is dissolved in a particular solvent in this much gram per milliliter or this much gram per liter. So this is a very commonly used term. It is defined as the amount of solute in grams प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. जितना सल्यूट ग्राम में 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा वही स्ट्रेंथ होता है. स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें या कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, देन इट विल बी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन liters, or mass of solution in grams into 1000 divided by volume of solution into milliliters. जब आप solution को लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, नेचुरली ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. थस अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहें, स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन इज W/V, मास अपॉन वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर. पार्ट्स पर मिलियन. अगर अमाउंट ऑफ सल्यूट बहुत ही कम हो, बहुत छोटा हो, जनरली हम पल्यूटेंट्स को इस पर्टिकुलर टर्म में कैलकुलेट करते हैं पार्ट्स पर मिलियन. व्हेन द सल्यूट इज़ प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज़, ट्रेस मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे अमाउंट में अगर सल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं तो इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन. It is defined as the quantity of the solute in grams present in 10 to the power 6 grams of solution. Quantity of grams of solute present in 10 to the power 6 gram of solution. चूँकि हमने parts per million बोला है, million means 10 to the power 6. So ppm equals to mass of solute into 10 to the power 6 divided by mass of solution.
लाइक एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इन सिटी इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन ppm बाई वॉल्यूम. अगर हम कह रहे हैं 10 ppm SO2 इन एयर, इसका क्या मतलब है? मतलब 10 ml SO2 प्रेजेंट है 10⁶ ml ऑफ एयर में. 10 ml SO2 10⁶ ml ऑफ एयर में प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि SO2 का कंसनट्रेशन कितना है एयर में? 10 ppm. Then let us come to mole fraction. It is again a very important term. It is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all components present in the solution. ये एक रेशियो है एक component का moles divided by all component के नंबर ऑफ मोल्स उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में. अगर आप फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहें, लेट अस सपोज हम जैसे एक बाइनरी सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे जिसमें कि एक सल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो इस केस में सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हमने NB ले लिया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को NA ले लिया, तो XA दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू NA डिवाइडेड बाई NA प्लस NB. Similarly, XB equals to NB divided by NA plus NB. XA और XB क्या है? XA मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, XB मोल फ्रैक्शन सल्यूट का. बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जनरली हम जब भी सल्यूट और सॉल्वेंट को लेते हैं तो हम A सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं सॉल्वेंट के लिए और B सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं सल्यूट के लिए. ठीक है, और यहाँ पे चूंकि ये फ्रैक्शन है तो हमेशा XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1. जैसे कि अगर आपको XA पता चल गया तो आप 1 माइनस XA कर देंगे तो XB निकल जाएगा, या XB पता चल गया तो 1 माइनस XB कर देंगे तो XA आ जाएगा. तो XA प्लस XB अगर दो ही कंपोनेंट हैं तो, दो से ज़्यादा कंपोनेंट है जैसे अगर 3 कंपोनेंट है तो XA प्लस XB प्लस XC इक्वल्स टू 1 होगा. चूँकि हम यहाँ पे दो ही कंपोनेंट लेके चल रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 लिखा है. Then moving to the next concentration term, molality. It is defined as the number of moles of solute dissolved per kg of solvent. Its unit is mole per kg and it is denoted by small m. मोलालिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. चूँकि मोलालिटी एक मास डिपेंडेंट क्वांटिटी है और मास जो है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए मोलालिटी इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. मोलालिटी के लिए हमें मतलब अगर हम मोलल सॉल्यूशंस बनाते हैं तो टेम्परेचर से मोलालिटी चेंज नहीं होगी, चाहे टेम्परेचर में अप या डाउन हो, लेकिन मोलालिटी विल नॉट चेंज. ओके, सो इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज़ मोल पर केजी. अगर आप मैथमेटिकल फार्मूला मोलालिटी का याद करना चाहें और देखना चाहें तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फार्मूला. स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमने किया WB अपॉन MB, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू 1000. चूँकि यहाँ हमने ग्राम्स में लिया है और यहाँ kg है, तो जैसे ही हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट किया हमने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस इज़ द formula what we will use in numericals, WB into 1000 divided by MB into WA. अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रिलेशनशिप हम आपको बता देते हैं, बहुत न्यूमेरिकल्स में हमें काम आएगा. मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशनशिप है ये. मोलालिटी equals to XB into 1000 divided by 1 minus XB into MA. Here XB is mole fraction of solute. 1 minus XB is mole fraction of solvent. In fact XA भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे. MA is molar mass of solvent. MA molar mass of solvent and small m you know is molality. Molality mole fraction of solute, mole fraction of solvent into molar mass of solvent. In this way, if you have mole fraction you can calculate molality, if you have molality you can calculate mole fraction. So this is a relationship. Now molarity, it is the number of moles of solute dissolved in per liter of solution. थोड़ा सा डिफरेंट है मोलालिटी से. वहाँ हम मास के रिस्पेक्ट में ले रहे थे, सॉल्वेंट के मास के रिस्पेक्ट में. यहाँ हम सॉल्वेंट के वॉल्यूम पर काम करेंगे. इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. Its unit is mole per liter. It is denoted by capital M. This is a temperature
डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है और वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है जबकि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, और हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि मोलैलिटी जो है स्मॉल m वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है जबकि मोलैरिटी दैट इज़ कैपिटल M वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर इसका मैथमेटिकल फार्मूला आप देखें तो मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। WB बाई MB दिस इज़ नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम हमने यहाँ मिलीलीटर में ले लिया है इसलिए हम इसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू यूज़ इट इन न्यूमेरिकल्स। नाउ मोलैरिटी चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, ये हमने आपको बता ही दिया है। अच्छा, हम रिलेशनशिप पढ़ लें अब मोलैरिटी और मास परसेंटेज। एक्चुअली मोलैरिटी निकालने का ये एक और तरीका है। अगर आपको मास परसेंटेज गिवन है, किसी भी मास परसेंटेज आप पहले पढ़ चुके हैं अभी, तो मास परसेंटेज अगर हमें किसी भी सोल्यूशन का पता है तो मोलैरिटी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास सोल्यूट का ले लिया, मास परसेंटेज आपको पता है, डेंसिटी अगर आपको पता है तो यहाँ से भी आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल रिलेशनशिप और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में अक्सर कॉम्पिटिटिव लेवल्स में भी इस पर आपके NCERT में भी क्वेश्चंस हैं। तो ये फार्मूला इज़ अगेन अ डिफरेंट फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी। One more formula we will see here. This is the relationship between molarity and molality. Molarity और molality के बीच अगर relationship, मतलब जैसे कि अगर हमें molarity पता है, molality नहीं पता है, तो हम ये relationship यूज़ करते हैं। Basic relationship is 1/m equals to density upon molarity minus MB. MB again molar mass of solute upon 1000. ये चूँकि यहाँ डिनोमिनेटर में मोलैलिटी आ रहा है तो इसको हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट करके ये फाइनल फार्मूला लेके आते हैं। मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू m डिवाइडेड बाई 1000 इंटू d माइनस molarity into molar mass of solute. Here D is the density of the solution, capital M is the molarity of the solution, MB is the molar mass of solute and M is the molality. So if you have these quantities like अगर आपको मोलैलिटी नहीं पता है और डेंसिटी और मोलैरिटी पता है तो मोलर मास ऑफ सल्यूट प्लेस करके यू कैन कैलकुलेट मोलैलिटी ऑल्सो. सो दिस इज़ द वे of calculation of molarity, mole fraction, etc. There is a very important thing like अक्सर हम कोई solution बनाते हैं फिर उसको dilute करते हैं, तो अगर डाइल्यूशन के पहले नेचुरली अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, अभी हमने पढ़ा मोलैरिटी इज़ अ वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटी, सो अगर हमने वॉल्यूम चेंज किया, पहले कुछ वॉल्यूम सपोज हमारे पास 2 लीटर था उसमें हमने पानी मिला करके उसको जो है 5 लीटर बना दिया, तो नेचुरली जो नई मोलैरिटी होगी वो बदल जाएगी. ठीक है, तो डाइल्यूशन जब हम करते हैं तो देयर इज़ ऑलवेज चेंज इन मोलैरिटी. सो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन के लिए हम ये एक पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ करते हैं, M1V1 इक्वल्स टू M2V2. M1 is molarity before dilution, V1 is volume before dilution, M2 is molarity after dilution and V2 is volume after dilution. So in this way we can calculate the molarity, the change in molarity after dilution. If there are 4 quantities, अगर इनमें से कोई 3 आपको पता है तो चौथी आप आराम से निकाल सकते हैं. Similarly, mixing, अगर हम 2 या 3 सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं तो नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी ये हम एक पर्टिकुलर फार्मूला से निकाल सकते हैं. जैसे लेट देयर इज़ 3 सैम्पल्स ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग सेम सॉल्वेंट एंड सल्यूट. सॉल्वेंट सल्यूट अगर सेम है और हमारे पास 3 सॉल्यूशंस है जिसमें कि पहली की मोलैरिटी M1 है, दूसरे की M2 है और तीसरे की M3 है, तो और उनका वॉल्यूम V1, V2 और V3 है रिस्पेक्टिवली, तो क्या होगा, इसको जब हम मिक्स करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन बनता है वो होता है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इक्वल्स टू MR V1 प्लस V2 प्लस V3. हियर M1V1 is M1 is the molarity of first solution, M2 second solution, M3 third solution, and V1 volume of first solution, V2 volume of second solution and V3 volume of third solution. तीनों को ऐड कर दिया, MR is the new molarity. तीनों को मिक्स करने के बाद जो solution बना उसकी molarity हमने MR रखी है, तो MR is what? It is the resultant molarity
और नेचुरली वॉल्यूम तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो वो नए सोल्यूशन का वॉल्यूम बन जाएगा. तो V1 + V2 + V3 इज़ द रिजल्टेंट वॉल्यूम. सो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज़ नोन एज मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसनट्रेशन टर्म्स. तमाम कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने पढ़े और सारे फार्मूलाज जो हैं हम लोगों ने देखे हैं, और ये सारे फार्मूलाज आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में और कैलकुलेशंस करने में काम आएंगे. सो यू हैव टू लर्न ऑल दिस फार्मूलाज बाय हार्ट. थैंक यू चिल्ड्रन.